everyone, welcome to Biosecrets. Today we will discuss class 12 biology chapter number 6, that is evolution. Okay, so this is part 8 of this chapter and you can watch all the videos of this chapter from the playlist section. In the previous video we have discussed the till mechanism of evolution and now we will start Hardy-Weinberg principle. Okay, Weinberg principle. In a given population, one can find out the frequency of occurrence of alleles of a gene or a locus. एक population में हम find कर सकते हैं frequency of occurrence of alleles एक gene की या एक locus पर. ये जो frequency है is supposed to remain fixed and even remain the same through generation. ये frequency fixed रहती है, same रहती है over generation, one generation to another generation. Next is Hardy-Weinberg principle stated it using algebraic equation. Hardy-Weinberg principle ने इस frequency को algebraic equation में state किया है. ये principle क्या कहता है? So this principle says that allele frequencies in a population are stable. allele की जो frequency है एक population में वो stable है और constant है from generation to generation. The gene pool means total genes and their alleles in a population. What is gene pool? You have to remember total genes and their alleles. Total जितने भी genes हैं और उनके सबके alleles एक population में. This is called gene pool. Remains a constant. Constant रहते हैं, इसी को हम genetic equilibrium बोलते हैं. So sum total of all the allelic frequencies. जितनी भी allelic frequencies हैं उनका सबका जब हम sum करते हैं, so that is equal to 1. For example, individual frequency can be named P, Q, etc. देखिए individual है कोई, उसकी जो frequency है एक P है, another is Q. ये two frequencies हैं. So in a diploid organism में P and Q represent the frequency of allele A and allele small a. Capital A allele है और small a, ये two alleles होती है ना एक जीन में. तो ये जो कैपिटल ए एलील है उसकी फ्रीक्वेंसी है P एंड दिस स्मॉल ए फ्रीक्वेंसी इज Q. ओके, कैपिटल ए इक्वल टू P, स्मॉल ए इक्वल टू Q. दिस यू हैव अंडरस्टैंड? ओके. Now the frequency of a capital A individuals in a population is simply P square. Okay, let's see. Capital A is equals to P. So capital A equal to P square. We can say this. Okay. This is simply stated in another way. That is the probability that an allele capital A with a frequency of a small p appear on both the chromosomes of a diploid individual is simply the product of probabilities, that is P square. ये बस आपको यही बताया यहाँ पर कि कैपिटल A को हम बोलेंगे P square. Okay. सो सिमिलरली स्मॉल ए क्या होगा? जैसे हमने अभी बताया था कैपिटल ए P है, स्मॉल ए Q है. सो कैपिटल ए इक्वल टू P स्क्वायर एंड स्मॉल ए इक्वल टू Q स्क्वायर. हैव यू अंडरस्टैंड दिस? ओके. Capital A equal to P, small a equal to Q. So capital A is equals to P square, small a is equals to Q square. Now, look at here. Capital A P square, small a Q square. And if there is capital A and small a allele, then we will represent it by 2PQ. Okay. Capital A, 2PQ. Capital A P square, small a Q square, capital A 2PQ. Hence, P square plus 2PQ plus Q square is equals to 1. This is a binomial expansion of P plus Q whole square. P plus Q whole square का formula आपने maths में पढ़ा होगा ना? P plus Q whole square is equals to P square plus Q square plus 2PQ. है ना? Similarly, this is the formula of P plus Q whole square.
नाउ व्हेन फ्रीक्वेंसी मीजर, जब हम फ्रीक्वेंसी को मीजर करते हैं, डिफर्स फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू, जब वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से कुछ चेंज आ जाता है उसमें, द डिफरेंस मीन्स डायरेक्शन इंडिकेट करता है द एक्सटेंट ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज। डिस्टर्बेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम, जेनेटिक इक्विलिब्रियम में डिस्टर्बेंस जो होता है, या हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में जो डिस्टर्बेंस होता है, दैट इज अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है ऑफ एलील इन अ पॉपुलेशन, देन बी इंटरप्रेटेड एज रिजल्टिंग इन एवोल्यूशन। मीन्स कि अगर ये फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम चेंज होता है, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम चेंज होता है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस आता है, तब हम कहते हैं कि क्या हो गया है, एवोल्यूशन हो गया है। ओके, अब देखिए ये जो 5 फैक्टर्स अब मैं आपको बताऊंगी, these all 5 factors are known to affect Hardy-Weinberg equilibrium. So ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फर्स्ट इज जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो भी बोल सकते हैं जीन माइग्रेशन को। नेक्स्ट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड थर्ड इज म्यूटेशन, फोर्थ इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड फिफ्थ इज नेचुरल सिलेक्शन। ओके, व्हेन माइग्रेशन ऑफ ए सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस, जब एक सेक्शन की कुछ पॉपुलेशन किसी दूसरी जगह जाती है एंड पॉपुलेशन अकर्स, ठीक है, माइग्रेशन होता है कुछ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन का दूसरी प्लेस पर, देन जीन फ्रीक्वेंसी चेंज इन द ओरिजिनल एज वेल एज इन द न्यू पॉपुलेशन। तो जीन की फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाती है, जहाँ से चेंज हुई है, जहाँ से माइग्रेट हुई है पॉपुलेशन, मान लीजिए यहाँ पर ये एक प्लेस है, यहाँ पर कुछ पॉपुलेशन प्रेजेंट है, इसमें से थोड़ी सी पॉपुलेशन यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गए हैं ये लोग, इस जगह, ठीक, यहाँ से ये लोग यहाँ पर आ गए हैं। तो क्या हुआ है, यहाँ जो ओरिजिनल प्लेस थी वहाँ पर भी और जो न्यू प्लेस है वहाँ पर भी, दोनों ही जगह जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। ओके, जीन फ्रीक्वेंसीज चेंज इन द ओरिजिनल एज वेल एज इन द न्यू पॉपुलेशन। नाउ देखिए, न्यू जीन्स एलील्स आर एडेड, न्यू जीन्स न्यू एलील वो सब ऐड हो जाती हैं न्यू पॉपुलेशन में, एंड दीज आर लॉस्ट फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन, ओल्ड पॉपुलेशन से वो लॉस्ट हो जाएंगी और न्यू पॉपुलेशन में ऐड हो जाएंगी। देयर वुड बी अ जीन फ्लो, तो जीन का फ्लो होता है इफ दिस जीन माइग्रेशन हैपन्स मल्टीपल टाइम, अगर इसी तरीके से जीन का माइग्रेशन होता है कई बार तो जीन फ्लो होता है। अगर सेम चेंज होता है बाय चांस, मीन्स बाय चांस अगर कुछ चेंज हो गया है तो उसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी सो डिफरेंट इन द न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन दैट दे बिकम अ डिफरेंट स्पीशीज। कभी कभी एलील फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आता है वो समटाइम्स द चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी सो डिफरेंट, इतना मतलब अलग होता है वो न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन में, न्यू पॉपुलेशन जहाँ शिफ्ट होती है वहाँ पर एलील की फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा चेंज होती है कि न्यू स्पीशीज ही बन जाती है वहाँ न्यू एरिया में। ओके, तो जो ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन होती है ना, जो मीन्स एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हुई है, वो फाउंडर बन जाते हैं। जब स्पीशीज न्यू आ गई तो वो फाउंडर हो गए, एंड जो इफेक्ट होता है उसको फाउंडर इफेक्ट बोलते हैं। तो फाउंडर इफेक्ट के बारे में आपसे अगर पूछेंगे तो आपको यहाँ से लिखना होगा, समटाइम्स द चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी इज सो डिफरेंट इन द न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन that they become a different species, the original drifted population becomes founder and the effect is called founder effect. Okay, समझ में आया फाउंडर्स इफेक्ट? देखिए क्या होता है फाउंडर्स इफेक्ट में, जैसे यहाँ पर एक पॉपुलेशन प्रेजेंट है, ठीक, इसमें से कुछ पॉपुलेशन दूसरी जगह पर माइग्रेट कर गई है, यहाँ पर आ गई है कुछ पॉपुलेशन, इससे क्या हुआ, यहाँ आने से जो ये वाली पॉपुलेशन थी ना, ये यहाँ पर शिफ्ट कर गई है। तो यहाँ शिफ्ट करने से एलील की जीन की फ्रीक्वेंसी में इतना चेंज आ गया कि न्यू स्पीशीज बन गई हैं। तो ये जो है ना, ये इफेक्ट कहलाता है फाउंडर इफेक्ट। ये फाउंडर है ना न्यू स्पीशीज के। अब देखिए, माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट शो दैट प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजियस म्यूटेशंस व्हेन सेलेक्टेड विल रिजल्ट इन ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यू फिनोटाइप। माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला था कि जो पहले से एग्जिस्ट करने वाले ऑर्गेनिजम्स थे, बैक्टीरियाज थे, उसमें क्या हुआ था, म्यूटेशन हुआ। जब उनको नेचर ने सेलेक्ट किया तो उनके फिनोटाइप में चेंज आ गया, मींस फिजिकल अपीयरेंस में उनकी चेंज आ गया। कुछ जनरेशन्स तक दिस वुड रिजल्ट इन स्पेसिएशन, कुछ जनरेशन्स तक ऐसा हुआ और फिर क्या हुआ, स्पेशिएशन हो गया, ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज हो गया। अब नेचुरल सिलेक्शन इज अ प्रोसेस। नेचुरल सिलेक्शन क्या है? नेचुरल सिलेक्शन एक प्रोसेस है इन विच हेरिटेबल
वेरिएशंस अनेबलिंग बेटर सर्वाइवल। जो हेरिटेबल मीन्स कि जो वेरिएशंस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती हैं, पेरेंट्स से प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होती हैं, वो है हेरिटेबल वेरिएशन। तो नेचर जो है वो ऐसी वेरिएशंस को सेलेक्ट करती है जो हेरिटेबल होती हैं, अनेबल करती है बेटर सर्वाइवल, आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस करने के लिए उनको एबल करती है, एंड लीव ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनी। ठीक है। A critical analysis makes us believe that variation due to mutation or variation due to recombination during gametogenesis or due to gene flow or genetic drift result in change frequency of genes and alleles in future generation. एक देखिए क्रिटिकल एनालिसिस आया था जिससे मतलब जो वेरिएशंस आती है ना म्यूटेशन की वजह से, या किसी वेरिएशन कोई आ गई है, रिकॉम्बिनेशन हो गया है जीन्स का, तो एलील की रिकॉम्बिनेशन की वजह से कोई वेरिएशन आई है। जब गैमीटोजेनेसिस होता है, गैमीट बनने का जो प्रोसेस है उसको गैमीटोजेनेसिस बोलते हैं। oogenesis इन फीमेल एंड स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल। ओके, सो गैमीटोजेनेसिस के दौरान जब कोई रिकॉम्बिनेशन हुआ या म्यूटेशन हो गया है जिसकी वजह से वेरिएशन आ गई है, या जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से कोई वेरिएशन आई है, तो इससे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है जीन्स की एंड एलील्स की फ्यूचर जनरेशन में। कपल टू एनहांस रिप्रोडक्टिव सक्सेस, नेचुरल सिलेक्शन मेक्स इट लुक लाइक डिफरेंट पॉपुलेशन। तो रिप्रोडक्टिव सक्सेस की वजह से, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन डिफरेंट दिखने लगती है। अब देखिए, नेचुरल सिलेक्शन कैन लेड टू स्टेबलाइजेशन। नेचुरल सिलेक्शन की वजह से ये 3 प्रोसेसेस हो सकते हैं। स्टेबलाइजेशन इन विच मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू। देखिए, अभी मैं इसको डायग्राम में शो करूंगी तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। स्टेबलाइजेशन अभी आप देख लीजिए इसको, इन विच मोर इंडिविजुअल, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल्स यहाँ पर मीन करेक्टर वैल्यू मीन्स बीच वाली जो वैल्यू है वो एक्वायर करते हैं स्टेबलाइजेशन में। ठीक है। नेक्स्ट इज डायरेक्शनल चेंज। डायरेक्शनल चेंज मीन्स कि मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू। मीन्स कि यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स है वो मीन कैरेक्टर वैल्यू को छोड़कर किसी दूसरे डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं, मीन्स कि वो किसी और डायरेक्शन में चले जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, डिसरप्शन, थर्ड पॉइंट है डिसरप्शन। सो मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ एंड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के दोनों एंड पर पेरिफेरल कैरेक्टर एक्वायर कर लेते हैं, मीन कैरेक्टर वैल्यू को छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर है ये डायग्राम, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑन डिफरेंट ट्रेट्स, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल एंड disruptive. This is number of individual with phenotype here. phenotype favored by natural selection. ये phenotype है जो favor हो रहा है by natural selection. Now medium sized individuals are favored here. medium size के individuals, ये देखिए बीच में आ रहा है ये कर्व, तो यहाँ पर medium size के जो individuals हैं उनको favor किया जा रहा है, वो favor कर रहे हैं उस natural selection को। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्टेबलाइजेशन में क्या हो रहा है, मीन जो पीक है वो हाइयर होता जा रहा है, मीन्स ये वाला जो पीक है ये और ज़्यादा हाइयर हो गया है यहाँ पर, और ज़्यादा नैरो हो गया है यहाँ पर। ठीक है। मीन कैरेक्टर वैल्यू को यहाँ पर एक्वायर किया है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्शनल ग्राफ है ये, डायरेक्शनल का। यहाँ पे जो पीक है वो एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया है, ये देखिए पीक एक डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया है पीक, है ना। मीन कैरेक्टर वैल्यू को उसने छोड़ दिया है, वो एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, तो पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन। एंड हियर दिस इज डिसरप्टिव, पीक गेट हायर एट बोथ एंड्स ऑफ द पेरिफेरल वैल्यूज। ओके, यहाँ पर मीन कैरेक्टर वैल्यू को छोड़कर पीक जो है वो पेरिफेरल कैरेक्टर, दोनों एंड्स के पेरिफेरल कैरेक्टर में आ चुका है, तो 2 पीक्स फॉर्म हुए हैं यहाँ डिसरप्टिव वाले ग्राफ में। ओके, this is a comparison of skull of adult modern human being, baby chimpanzee and adult chimpanzee. ये चिंपैंजी और एडल्ट चिंपैंजी ह्यूमन बीइंग का जो स्कल है उसको कंपैरिजन करके शो किया है। स्कल ऑफ बेबी चिंपैंजी इज मोर लाइक एडल्ट ह्यूमन स्कल दैन एडल्ट चिंपैंजी स्कल। जो बेबी चिंपैंजी का स्कल है वो ज़्यादा एडल्ट ह्यूमन की तरह है ना, एज कम्पेयर टू एडल्ट चिंपैंजी। ओके, now from a brief account of evolution, this we will discuss in next video. If my video is helpful for you, then please like, share and subscribe this channel. Thank you.